Hello students, I am Gulbahar Ansari. Today we will discuss Chapter 5 Access Control, Intelligent Detection System and Firewalls. This is Part 1. Now in this chapter we will discuss identification, authentication, authorization and related to ID's topic, okay, Intelligent Detection System. So now we will focus on first identification. Okay, so now exactly identification is what? So it is the ability to identify uniquely a user of a system or an application actually that is running in the system. So basically the system uses the user ID to identify the user. So basically system identifying the user by using user's ID. Okay, so who is using this system or an application? For example, if I am trying to log in my Gmail account, okay, and now this system will ask me first my username. So that username is for identification, for my identification. Okay, so system will identify me by my username. So this is the process of what? Identification. Actually this is what? Identification. And next point is what? Authentication. So authentication means if user try to log in and if user has given password to the system after username, so system will check the user who is trying to log in, that user is valid or not, means authenticate user or not. Okay, so by checking that password, if password is correct then the user is valid. Okay, and this is what? This is actually authentication. So there are generally two recognized type of authentication factor, type 1 and type 2. So in type 1 authentication, what is there in type 1 authentication exactly? So something that you know. Okay, so something that you know means what? Your password, your pins, means your Gmail account password, Instagram password, any other application password that you are using. Okay, that password pins is for authentication. So system will use that password for authenticate the user exactly. So this is what? Type 1 authentication. So in type 2 authentication is what? Is something that you have, means what? It includes physical object like your smartphone, smart card, USB drive. So in type 2 authentication, system will authenticate the users by using their smartphone. For example, if I have my smartphone, okay, and I locked my screen and my screen will open if I will put correct pins or password which I have used at the time of screen locked for security reason. Okay, so if I have applied correct password, so system will check, and if that is correct, so screen will open, otherwise it will not open. So these things we are generally using for security, so no one can easily access our mobile phones, etc. So this is authentication. So whatever we are giving to system will verify that password for this purpose user is valid or not. So whatever system or application using the user, so that is authenticate or not. Okay, so this is what? This is type 2 authentication. So third point is authorization. So authorization protects critical resources in a system by limiting access only to authorized user and their application. It prevents the unauthorized use of a resource or the use of a resource in an authorized manner. Okay, so this diagram is showing, first diagram is showing authentication and second one is showing what? Authorization. So in authentication, what is exactly is here? So authentication, we are giving username, so it is identification. Okay, and when we will give password and click on login button, after that system will check, and if password is correct then it will open our account. So this is what? This is authentication. And second is what? Authorization. So authorization, it is showing what permissions we have to do the things. Okay,
तो क्या क्या परमिशंस हमारे पास है एग्जैक्टली में, वो क्या होगा, हमारा ऑथराइजेशन होगा एग्जैक्टली। तो हम लोग अगर मेरा पर्टिकुलर अकाउंट है, अकाउंट ओपन होने के बाद उस अकाउंट में मैं क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें, क्या क्या परमिशन मेरे पास है, वो क्या होगा, ऑथराइजेशन होगा एग्जैक्टली। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर एक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बुक से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन में मैं एक लोकल यूज़र हूँ और एक एडमिन है। तो एडमिन के पास क्या क्या परमिशंस हो सकती है और एक लोकल यूज़र के पास क्या क्या परमिशन हो सकती है। सो बुक रिलेटेड टू एप्लीकेशन इज बुक, ओके, सो लोकल यूज़र विल रीड एंड परचेज दैट बुक्स, ओके। सो अब अपडेट कर सकता है। सो दिस काइंड ऑफ परमिशन इज हैविंग व्हाट लोकल यूज़र। और एडमिन के पास क्या क्या होगा बेसिकली, कि वो एंट्रीज कर सकता, अपडेट कर सकता, अगर कुछ उसको पर्टिकुलर बुक डिलीट करना है तो वो डिलीट कर सकता। ये सारी चीज़ें क्या है, वो अपने लॉगिन से अगर करेगा तो ये सारी चीज़ें उसको परमिशन मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें करने के लिए एडमिन को बेसिकली। सो एडमिन की चीज़ें कोई लोकल यूज़र तो नहीं कर सकता यहाँ पे। सो दैट इज़ ऑथराइजेशन, कि जो जो परमिशन हमारे पास है, ओके, सो वही परमिशन हम लोग क्या कर सकते हैं, उतने ही चीज़ें, उतने ही रिसोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो दिस इज ऑथराइजेशन। नेक्स्ट इज IDs, that is intrusion detection system. First we will see what is intruders, okay, then we will come to IDs. So intruders are nothing but they are unauthorized person who doesn't have permission to access the network or a system, and they try to access the network. And mainly intruders are of two types. First is masquerader and misfeasor. So basically masquerader is outside intruders who tries to access information, okay, from outside the network. Basically they are not a authorized person, they doesn't have any access to do the things, okay. And second one is what, misfeasor. So now misfeasor is called also called inside intruder. The person who is having some limited access of an application or a system, so they will do only that particular things which they have permissions, okay, to do. So misfeasor is very dangerous as compared to the masquerader, because misfeasor is inside of network, okay. For example अगर वहाँ पे बेसिकली अभी कंपनी है, उस कंपनी में एक पर्सन जो n नंबर ऑफ एम्प्लॉई है वहाँ पे काम करने के लिए, अब उस कंपनी में यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में प्रेजेंटेशन जो देना है, कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो बॉस नहीं चाहता कि किसी और अपोजिट पार्टी को ये कॉन्फिडेंशियल डेटा क्या हो, मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनसाइड जो इंट्रूडर्स है उसका काम क्या रहता, बेसिकली वो अपने में से ही उस तो एक रहने वाला है पर्सन जो क्या करने वाला है, ये चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, डेटा वगैरह है, वो आउटसाइड पार्टी को, मतलब अपोजिट पार्टी को देना चाहता है। तो बेसिकली वो यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि वो इनसाइड नेटवर्क के इनसाइड का अगर पर्सन है तो वो क्या कर सकता है, उसके पास लिमिटेड एक्सेस रहने वाले हैं। तो लिमिटेड एक्सेस है, इट मीन्स व्हाट, कि वो ऑथराइज्ड पर्सन है, उसको सम लिमिटेड एक्सेस है कि वो चीज़ें कुछ क्या कर सकता है, नेटवर्क में चेंजेस वगैरह जो भी है वो कर सकता है बेसिकली यहाँ पे। तो अब वो क्या करेगा, अगर उसको कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है वो अपोजिट वाली पार्टी को अगर उसको सेंड करना है, देना है, तो वो इजीली क्या कर सकता है, इजीली क्रैक कर सकता है नेटवर्क को, एंड वो कॉन्फिडेंशियल डेटा क्या करेगा, वो सेंड कर सकता है अपोजिट पार्टी को। तो इससे जो है वो कंपनी को, जिस कंपनी में वो काम करता है बेसिकली वो इंट्रूडर्स, तो वो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है इससे, ठीक है। और ये मिसफीजर को पहचानने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि ये जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर का ही रहने वाला है बेसिकली, और उसको आइडेंटिफाई करना वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारा बेसिकली। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस एज कम्पेयर टू द मस्क्यूरेटर एग्जैक्टली। सो दिस इज़ व्हाट मिसफीजर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इंट्रूजन। सो नाउ हियर intrusion is what,
any unauthorized access of the network is called what? Intrusion. तो यहाँ पे जो भी हमारे पास नेटवर्क इन्वायरमेंट है, उस नेटवर्क इन्वायरमेंट में यहाँ पे इंट्रूडर्स का काम क्या रहने वाला है, जो भी वैल्यूबल रिसोर्सेज वगैरह है, जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह हमारे वन होस्ट से अनदर होस्ट जा रहा है, सो उसको एक्सेस करने का, उसको स्टील करने का, वैल्यूबल रिसोर्सेज को स्टील करने का यहाँ पे वो क्या करने वाला है, एक्सेस करने वाला है, स्टील करेगा उस पर्टिकुलर चीज़ों को। तो उस एक्सेस करना चाहेगा वो इंट्रूडर्स, तो ट्राई टू एक्सेस दैट रिसोर्सेज। ओके, सो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रूजन बोलेंगे बेसिकली। सो इन दिस डायग्राम showing what how the intruder attacks on the network. Okay, so allies want to send some confidential information to the Bob. Okay, so now intruder tries to attack on that information. They want, वो क्या चाहता है एग्जैक्टली कि जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा जो नेटवर्क में पास हो रहा है बेसिकली, तो उस नेटवर्क में वहाँ पे उस डेटा में क्या कर सके, वो डेटा को हैक कर सके, उसमें मलेशियस इंफॉर्मेशन वगैरह पुट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रूडर्स जो है वो ट्राई कर रहा है यहाँ पे जो भी मैसेज वगैरह अलाइज टू बॉब पास हो रहा है नेटवर्क के इन्वायरमेंट में, नेटवर्क के थ्रू, तो इंट्रूडर्स क्या करने वाला है, वो ट्राई करने वाला है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन पास हो रहा है वो इंफॉर्मेशन को अटैक कर सके, क्रैक कर सके, और उसमें अपने जो भी मलेशियस कोड वगैरह है वो पुट कर सके, सेंड कर सके। सो दिस इज़ व्हाट सिक्योरिटी अटैक्स यहाँ पे जो है वो बताया हुआ है बेसिकली इस डायग्राम में हमारा। नेक्स्ट इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। So intrusion detection system is nothing but what it is a one type of system which monitors the network traffic. तो यहाँ पे जो भी मॉनिटर करने वाला है बेसिकली, जो हम लोगों ने इंट्रूजन देखा कि यहाँ पे जो भी इंट्रूडर्स है वो क्या करने वाला, एक्सेस करने वाला है हमारे जो भी नेटवर्क इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें जो चलने वाली है, डेटा पैकेट जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होने वाला, मूव होने वाला है, उसमें वो क्या करने वाला है, ट्राई टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इंट्रूजन। तो यहाँ पे जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का मतलब है बेसिकली, तो ये वन टाइप ऑफ सिस्टम है विच मॉनिटर्स व्हाट नेटवर्क ट्रैफिक। तो नेटवर्क ट्रैफिक में जितने भी पैकेट्स, डेटा पैकेट्स, यहाँ पे n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, तो और उस नेटवर्क में बेसिकली हर एक कंप्यूटर से हमारा जो भी डेटा है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में हमारा जो डेटा है वो मूव करता है बेसिकली। तो यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इन द सेंस व्हाट कि जो भी हमारा जो डेटा सेंड हो रहा यहाँ से एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, फिर उस होस्ट से फिर दूसरे होस्ट में जो भी डेटा का पैकेट का फ्लो जा रहा है बेसिकली हमारा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट नेटवर्क ट्रैफिक, हम लोग उसको बेसिकली हम लोग नेटवर्क ट्रैफिक है। तो यहाँ पे आईडीज़ का काम क्या रहता है, वो मॉनिटर करने का काम रहता है कि जितने भी पैकेट्स जो है वन होस्ट से दूसरे होस्ट से अनदर होस्ट पे जो भी जा रहा है, तो वो क्या करेगा, मॉनिटर्स करेगा एंड एवरी टाइम ईच एंड एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में हर एक डेटा पैकेट्स को वो क्या करता, हर एक डेटा पैकेट्स को वो मॉनिटर करता, चेक करता बेसिकली। ठीक है, और चेक करने के बाद अगर उसमें सस्पिशियस एक्टिविटी, ओके, एंड इश्यूज़ वगैरह अगर कुछ है उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट्स में अगर फाउंड हो गया, तो वो क्या करने वाला है, वो अलर्ट करेगा किसको, एडमिनिस्ट्रेटर को बेसिकली। वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, अलर्ट करेगा कि इस टाइप की जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड हो गई है रिलेटेड टू दिस, तो वो क्या करेगा उस टाइम पे वो अलर्ट कर देगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या रहने वाला है, उसको रिजॉल्व करने का काम रहने वाला है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आफ्टर दैट वो रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे उस सस्पिशियस जो एक्टिविटी फाउंड हो गई है हमारी बेसिकली। तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का डायग्राम है बेसिकली। इसमें n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमारे कनेक्टेड है, यहाँ पे आईडीज़ है हमारा प्रोटेक्शन के लिए, एंड देन फायरवॉल्स है, राउटर है। इस राउटर का काम क्या रहता है, यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर से जो भी डेटा आने वाला है, तो राउटर का काम क्या रहता है, पैकेट्स को जिस तरह से हमारे वहाँ पे हर एक पैकेट्स आने वाला है और आईपी एड्रेस वहाँ पे क्या होता है, चेक करता है बेसिकली कि कहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सेंड करना है, ये कहाँ से आया है और किस वाले कंप्यूटर से हम लोगों को क्या करना है, सेंड करना है। जिस तरह हमारा एक पोस्टमैन का काम क्या रहता है कि जो भी एनवलप वगैरह है, ठीक है, लेटर्स वगैरह है, उस लेटर्स को वहाँ से रिसीव करके वहाँ से लेके जो भी डेस्टिनेशन है उसकी, उस डेस्टिनेशन पे पहुँचाने का काम हमारे
पोस्टमैन करता है। तो इसी तरह से राउटर भी क्या करने वाला है, राउटर का भी काम क्या रहता है, और उसके आईपी एड्रेस को चेक करके वो जो भी आईपी एड्रेस चेक करने के बाद जिस भी होस्ट का आईपी एड्रेस फाउंड हो जाएगा वो उस रूट से क्या करने वाला है, उस पैकेट को थ्रो करने वाला है, ठीक है, सेंड कर देगा बेसिकली। और यहाँ पे जो फायरवॉल लगा हुआ है, अगर कुछ उसमें कोई अनदर पैकेट्स वगैरह आ गया, ठीक है, तो ये फायरवॉल का काम क्या है यहाँ पे कि अगर कुछ समथिंग अनवांटेड जो भी पैकेट्स वगैरह अनवांटेड रिलेटेड टू सस्पिशियस जो भी मलेशियस अगर डेटा अगर फाउंड होगा तो फायरवॉल क्या करेगा, उसको अंदर नहीं आने देता, बेसिकली हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर नहीं करने देता। फायरवॉल के बारे में हम लोग डिटेल्स में बाद में देखेंगे। सो फायरवॉल का काम ये रहता है कि वो क्या करने वाला है, प्रोटेक्शन देने वाला है, यहाँ पे वॉल की तरह काम करने वाला है। वो एंटर इन्वायरमेंट के अंदर, नेटवर्क के अंदर उसको एंटर नहीं करने देता उस पैकेट्स को, ठीक है, मलेशियस जो भी डेटा वगैरह है उसको अंदर नहीं आने देता हमारे बेसिकली। यहाँ पे आईडीज जो है वो प्रोटेक्शन के लिए डिटेक्ट करने वाला है यहाँ पे कि हर एक जो भी इन्वायरमेंट में जो भी पैकेट्स हमारा एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होता है, तो हर एक पैकेट्स को ईच एंड एवरी सेकेंड हर एक पैकेट्स को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। अगर उसमें डेटा फाउंड हो गया तो आईडीज का काम क्या है, वो डिटेक्ट कर देगा, ठीक है, इंट्रूजन जो भी उसके अंदर होने वाले हैं उसको डिटेक्ट कर देगा। डिटेक्ट करने के बाद अगर उसमें मलेशियस कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड हो गई तो क्या करने वाला है, अलर्ट किसको करने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट कर देगा। तो ये क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो मेनली यहाँ पे so here there are 5 types of IDs. Okay, so first one in network intrusion detection system. Okay, so now NIDs means what, it is also intrusion detection system which is based on what, network, जो ये नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है। सो यहाँ पे NIDs का काम क्या रहता है, बेसिकली जो नेटवर्क इन्वायरमेंट में जो भी डेटा पैकेट्स का फ्लो होने वाला है, ठीक है, वो हर एक डेटा पैकेट्स को मॉनिटर करेंगे एंड देन कैप्चर करने के बाद उसको एनालाइज करने वाला है। सो जितने भी पैकेट्स है वो ईच एंड एवरी सेकेंड्स के हर एक पैकेट्स को क्या करेगा, वो मॉनिटर करेगा, और वो मॉनिटर कौन करने वाला, NIDs। तो यहाँ पे ये जो भी डिटेक्शन होने वाला है ये रिलेटेड टू नेटवर्क इन्वायरमेंट के लिए ही है हमारा, बेसिकली जो उस नेटवर्क इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें जो भी पैकेट्स वगैरह फ्लो होने वाला है हमारा वन होस्ट टू अनदर होस्ट, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है, तो वो उतना ही वो क्या करने वाला है, उस पैकेट्स को मॉनिटर करेगा एंड आफ्टर दैट वो क्या करेगा, अगर उसमें कुछ मलेशियस एक्टिविटीज़ वगैरह अगर कुछ फाउंड हो गया, ठीक है, तो उस डिवाइस में अगर कुछ मलेशियस एक्टिविटी अगर उसको ऐसा लगा कि उसमें कुछ मलेशियस डेटा अगर फाउंड हो गया तो वो क्या करने वाला है, उस डेटा को वो कैप्चर करेगा एंड आफ्टर दैट वो एनालाइज करेगा। तो कैप्चर करने के बाद एनालाइज जो करने वाला है वो किस तरह से एनालाइज करेगा, यहाँ पे NIDs में बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारे पास नॉन अटैक्स के लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। तो नॉन अटैक्स लाइब्रेरी इट मीन्स वर्ड के यहाँ पे जो पहले से ही हमारे पास जो अटैक्स हो गए हुए हैं ऑलरेडी, जो अटैक्स हम लोगों को पता है, उस अटैक्स का वहाँ पे नंबर ऑफ अटैक्स का कलेक्शन अवेलेबल है उस लाइब्रेरी में। वो हम लोग वो क्या करने वाला है, बेसिकली वो कंपेयर करेगा, एनालाइज करेगा एंड अगर उसको कंपेयर करने के बाद अगर उसको कुछ डेटा फाउंड हो गया मीन्स कि, ठीक है, एनालाइज करने के बाद आफ्टर दैट वो कंपेयर करने के बाद अगर उसमें कुछ मलेशियस डेटा प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे NIDs क्या करने वाला है, इस सिस्टम को वो किसको अलर्ट कर देंगे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिन को क्या करने वाला है, अलर्ट सिस्टम सेंड कर देगा बेसिकली। तो यहाँ पे ये NIDs का काम कर रहता। नेक्स्ट हमारा क्या है, होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में। सो होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में बेसिकली क्या है, यहाँ पे एग्जैक्टली में कि ये होस्ट से रिलेटेड है। इट मीन्स वर्ड कि यहाँ पे HIDs जो है वो एक सिस्टम के ऊपर, एक होस्ट के ऊपर बेसिकली इंस्टॉल कर दिया करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट जो होस्ट और डिवाइस है उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले, HIDs इंस्टॉल कर देते बेसिकली, और उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉनिटर करने वाले। तो यहाँ पे HIDs क्या मॉनिटर करेंगे कि बेसिकली जिस डिवाइस के ऊपर, जिस पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर HIDs जो इंस्टॉल किया हुआ है और उसको क्या करने वाला है, उसी डिवाइस को वो क्या करेगा, मॉनिटर करने वाले कि उससे जो भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेज जो डेटा आ रहा है सिस्टम के अंदर, उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर जिसमें हम लोगों ने HIDs इंस्टॉल किया हुआ है, उस डिवाइस के अंदर जो भी डेटा आ रहा है हमारा, और जो भी डेटा पैकेज जो भी है आउटसाइड वाले सिस्टम में सेंड हो रहा है, ठीक है, हर एक पैकेट्स को वो क्या करने वाला है,
चेक करने वाला है, बेसिकली एग्जामिन करेगा। ओके, तो आफ्टर दैट वो एग्जामिन करने के बाद, वो चेक करने के बाद वो क्या करने वाला है, ईच एंड एवरी टाइम वो पैकेट्स को क्या करेंगे, चेक करने वाला है। उसके बाद अगर उसमें उसको अगर मलेशियस कुछ डेटा अगर फाउंड हो गया बेसिकली, तो वो क्या करेगा, इट विल अलर्ट टू दिस एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कर देगा, अगर कुछ सस्पिशियस मलेशियस एक्टिविटी अगर डिटेक्ट हो गया उसके अंदर, उस पैकेट्स के अंदर, तो वो क्या करेगा, एडमिन को अलर्ट सिस्टम क्या कर देने वाला है, सेंड कर देने वाला है। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, उसको रिजोल्व करने की ट्राई करेगा फिर उस सिस्टम को। नेक्स्ट पॉइंट इज, third point is protocol based intrusion detection system. So now here is what this PID is based on. What this is also a intrusion detection system which is typically installed on a web server. Okay, so PID, we will install PID in the web server. This monitor which is used to monitor and analyze the protocol. Okay, सो हम लोग बेसिकली पी आई डी पे करेंगे, सर्वर साइड पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वेब सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे, विच इज़ यूज फॉर वट पर्पस, मॉनिटर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए प्रोटोकॉल को, HTTP प्रोटोकॉल जो है वो एनालाइज करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पी आई डी को इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे वो किस तरह से एनालाइज करने वाला है, मॉनिटर करने वाला है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होने वाला है, कम्युनिकेशन बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइस एंड द सिस्टम। ओके, तो इट इज़ प्रोटेक्टिंग। तो जो कनेक्टेड डिवाइस है, जो हमारे सिस्टम से जो डिवाइस कनेक्टेड है, जिस में हम लोग क्या करने वाले, कम्युनिकेट करने वाले वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो इट विल प्रोटेक्ट दैट डिवाइस। ओके, तो जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है हमारे सिस्टम से, जिससे हम लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है। और किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे वेब सर्वर को ट्राई टू सिक्योर द वेब सर्वर बाय रेगुलरली मॉनिटरिंग द HTTP प्रोटोकॉल। एवरी टाइम वो क्या करने वाला है, HTTPS प्रोटोकॉल को एवरी टाइम वो क्या करने वाला है, मॉनिटर करने वाला है। और जो कम्युनिकेशन बिटवीन जो एक डिवाइस से अनदर डिवाइस जो हो रहा है हमारा थ्रू द HTTPS प्रोटोकॉल, तो वो क्या करेगा, इसमें अगर कुछ फाउंड हो गया डेटा, तो इट विल, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो भी डेटा वगैरह फाइंड हो जाने वाला मलेशियस, तो उस पर रिपोर्ट हम लोग किसको करेंगे, एडमिन को करेंगे। तो एडमिन क्या करेंगे, रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, HTTPS प्रोटोकॉल को मॉनिटर करने वाले हैं। किस तरह से, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होने वाला है एक डिवाइस से अनदर डिवाइस में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग बेसिकली उस वेब सर्वर को। Fourth one is application protocol based intrusion detection system. Okay, so now here application protocol based intrusion detection system is an intrusion detection system. So that is focuses its monitoring and analyzes on a specific application protocol. Okay, or protocols in use by the computing system. So this is what application protocol based intrusion detection system. It identifies the intrusions by monitoring and interpreting the communication on an application specific protocol, Okay, so next point is, fifth point is hybrid intrusion detection system. So hybrid intrusion detection system is what it is made by the combination of two or more approaches of the intrusion detection system. ये क्या है, जितने भी हम लोगों ने intrusion detection system देखे हैं उसका कॉम्बिनेशन है बेसिकली। जितने भी हमारे पास इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, उस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को हम लोग कंबाइन करके मेनली हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले, डिटेक्ट करने वाले मलेशियस जो भी एक्टिविटी, जो भी कोड वगैरह हमारे डेटा पैकेज में फाउंड होगा, वो मलेशियस एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, उन सारे अप्रोचेस को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट करने वाले। सो दिस इज़ व्हाट हाइब्रिड इंट्रूजन डिटेक्शन। Next is detection method of IDs. Okay, so basically there are two types of techniques which is used in IDs, so signature based method and anomalies based method. First we will see signature based method. So here in signature based method is what, so signature is what, it is a one type of pattern which is occur inside the network packet, inside the packets. Okay, तो जहाँ पे पैकेट्स के अंदर जो हम लोगों को जो भी पैटर्न्स फाउंड होने वाले, इट मीन्स कि जो भी मलेशियस डेटा कोड वगैरह फाउंड होने वाला है, वो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सिग्नेचर। तो जो भी अटैकर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो क्या करता है, ट्राई टू एक्सेस दैट पैकेट, जो भी नेटवर्क में पैकेट्स है उसमें क्या करने वाला है, उस मलेशियस कोड को इंसर्ट करने वाला है। सो जो भी मलेशियस कोड जो इंसर्ट करने वाला है उसको अटैकर पैटर्न भी बोलते हैं, और हम लोग सिग्नेचर
सिग्नेचर भी बोलते बेसिकली, ठीक। तो वहाँ पे इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली यहाँ पे आईडीज़ का काम क्या रहता है, सिग्नेचर बेस्ड आईडीज़ का काम क्या रहता है, किस तरह से उस पैटर्न को जो डेटा पैकेज में जो फाउंड हो गया सिग्नेचर, उस पैटर्न को किस तरह से रिजॉल्व करने वाला है बेसिकली यहाँ पे। तो हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट करता है वो बेसिकली, उस डेटाबेस में एन नंबर ऑफ नोन अटैक्स, नोन जो भी जितने भी अटैक्स हुए वो सारे नोन अटैक्स के लिस्ट ऑफ कलेक्शन उस डेटाबेस में रहने वाले। तो उससे क्या करेंगे, उस सिग्नेचर को जो पैकेज के अंदर फाउंड हो जाएगा उस सिग्नेचर को वहाँ पे डेटाबेस के अंदर जितने भी कलेक्शन जैसे नोन अटैक्स जो है तो उससे कंपेयर करेंगे। आफ्टर दैट अगर वो कंपेयर होगा तो वो जितने भी कंपेयर होने के बाद इसमें मलेशियस जो कोड फाउंड हो गया, ठीक है, पैटर्न जो फाउंड हो गया है, तो इसको क्या करने वाला है, रिपोर्ट करने वाला है इस चीज़ की। रिपोर्ट किसको करेगा, वो एडमिन को रिपोर्ट करने वाला है। तो एडमिन क्या करेगा, उसको रिजोल्व करने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। जो भी मालवेयर वगैरह जो भी अटैक्स वगैरह जो हमारे पैकेज में मालवेयर वगैरह डिटेक्ट हो गया है, ठीक, तो उसको क्या करेगा, एडमिन रिजोल्व करने की ट्राई करेगा बेसिकली। तो यहाँ पे जितने भी नोन अटैक्स है वो बेसिकली सिग्नेचर बेस में क्या है कि यहाँ पे जितने भी डेटाबेस में हमारे पास नोन अटैक्स का कलेक्शन है, तो जो भी नोन अटैक्स है वो उसी के लिए क्या होगा, वो उसी को कंपेयर करके उसी को चेक करने वाला है बेसिकली। और यहाँ पे अगर अननोन अटैक्स जो भी है हमारे पास, जो ऐसे अटैक जो मार्केट में न्यू है, ठीक है, अवेलेबल है तब पहले, बट नाव अभी मार्केट में न्यू है तो ऐसे अटैक के बारे में तो नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या उस अटैक को कंपेयर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो हम लोगों को मैनुअली क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो वो वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है वो टास्क हमारे लिए। तो जो न्यू वगैरह जो भी न्यू मालवेयर वगैरह अगर डिटेक्ट करने के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन सिग्नेचर बेस्ड मेथड। ओके, नेक्स्ट वन इज एनोमली। नेक्स्ट इज एनोमली बेस्ड मेथड। सो एनोमली बेस्ड मेथड जो हम लोग ने सिग्नेचर बेस्ड मेथड में देखे कि न्यू अगर कुछ फाउंड हो गया तो हम लोग किस तरह से उसको क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले। तो यहाँ पे एनोमली बेस्ड मेथड में हम लोगों को क्या करना है, आईडीज यहाँ पे बेसिकली जो भी अननोन मालवेयर है जो हम लोगों को पता नहीं है, जो न्यू अटैक्स वगैरह है, ठीक है, जो न्यू मालवेयर डेवलप वगैरह। तो बेसिकली इन एनोमली बेस्ड आईडीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, वो मशीन लर्निंग का यूज़ करके बेसिकली हम लोग एक क्रिएट करेंगे ट्रस्टफुल एक्टिविटी मॉडल को। हम लोग क्या करने वाले हैं, मशीन लर्निंग का यूज़ करके एक्टिविटी मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। और उसमें जितने ऐसा एक्टिविटी मॉडल क्रिएट करेंगे कि अगर यहाँ पे जो भी डेटा पैकेज के अंदर जो भी ऐसे मेलिशियस कोड हमारे डिटेक्ट हो गए हैं जो हम लोगों को पता नहीं था, ठीक है, उस डेटा को क्या करना है, हम लोगों को कंपेयर करना है जो भी एक्टिविटी उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर अगर कुछ मलेशियस कोड वगैरह जो हमारे पास क्या है सिग्नेचर बेस्ड एनोमलीज हम लोगों ने यूज़ करके अगर कंपेयर कर ली, तो अगर वो मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स वर्ड की न्यू एक्टिविटी कुछ क्या हो गई है, इंट्रोड्यूस हो गई है, न्यू मालवेयर वगैरह अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है, तो किस तरह से हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे एनोमली बेस्ड मेथड में हम लोगों ने जो मशीन लर्निंग का यूज़ करके जो एक ट्रस्टफुल एक्टिविटी मॉडल क्रिएट किया हुआ है, तो बाय यूजिंग दिस मॉडल हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारे पास जो डेटा है का जो भी डेटा आने वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा पैकेट को हम लोग इस एक्टिविटी मॉडल से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद अगर उस डेटा पैकेज में सस्पिशियस अगर कुछ एक्टिविटी अगर कुछ हम लोगों को फाउंड हो गया, स्टूडेंट देखिए इन मॉडल, अगर उस मॉडल के अंदर कंपेयर करने के बाद अगर हम लोगों को सस्पिशियस एक्टिविटी डेटा अगर फाउंड हो गया तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका रिपोर्ट हम लोग किसको सेंड करने वाले, हमारे एडमिन को सेंड करने वाले बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग एनोमली बेस्ड मॉडल पे हम लोग एक जो मॉडल हम लोग क्रिएट करेंगे उस मॉडल का यूज़ करके बेसिकली हम लोग कंपेयर करने वाले जो न्यू जो भी अटैक्स वगैरह जो हमारे पास अननोन अटैक्स वगैरह जो है उसको हम लोग कंपेयर करके फाउंड करने वाले हैं मलेशियस कोड वगैरह को। So anomaly based method was the last topic. Okay, so hope you understood this. Thank you everyone.